نہرو نے آسمان کی طرف سر اٹھا لیا، لیاقت علی خان نے مخالفت کر دی، محبت کی ایک عجیب کہانی۔ لڑکا مسلمان، لڑکی ہندو، ہمیں قائد اعظم کی طرح کی شادی کرنی ہے۔ یہ باتیں کہاں گئی؟ گاندھی کا بیٹا اور فاطمہ کی کہانی۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھا اور پڑھ کر اس نے اپنا ایک نام پیدا کیا۔ 5 فٹ اور 10 انچ کا ایک خوبصورت قداور نوجوان، وہ نوجوان کہ جس کے خوبصورتی کے ڈنکے سب جگہ بج رہے تھے۔ یہ نوجوان ڈھاکہ میں پیدا ہوا سن 1888 کے اندر، یعنی کہ 1888 کے اندر ڈھاکہ میں پیدا ہوا۔ اعلیٰ گھر سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اعلیٰ تعلیم کا خواب بھی اس کے ذہن میں تھا اور اس کے لیے اس نے رخ کیا علی گڑھ یونیورسٹی کا۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی جو اس وقت مسلمانوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے تھے، اور وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہر نوجوان کی طرح اس کا بھی خواب یہ تھا کہ وہ خاص طور پر بیرسٹر بنے۔ آپ کو علم میں ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا اندرا گاندھی ہو یا پھر دیگر لوگ ہوں، اگر آپ ان سب کی شخصیات کو دیکھیں کہ جو اس وقت کے نوابوں، چودھریوں یا پھر ملکوں یا پھر ان سے رجواڑوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ نوجوان عام طور پر کرتے یہ تھے کہ وہ اعلیٰ یونیورسٹی سے یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد رخ کرتے تھے انگلینڈ کا۔ وہ وہاں پر عموماً بیرسٹر کی تعلیم ضرور حاصل کرتے تھے۔ اس نوجوان نے بھی بیرسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس نے رخ کیا اور سن 1916 میں اس نے اپنی ڈگری مکمل کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ برطانیہ میں موجود تھا تو وہاں کی گوریاں اس کے لیے ہمیشہ اپنی آنکھیں بچھائے رکھتی تھی۔ یہ نوجوان وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد رخ کرتا ہے ممبئی کا۔ بمبئی اس وقت سب لوگوں کے لیے اٹریکشن کا باعث تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا پھر اس وقت کے دیگر لوگ ہوں، اگر ان سب کی تاریخ کو آپ بڑے غور سے دیکھیں تو ان سب نے بمبئی کا رخ کیا، مگر اس نے وکالت کا شعبہ لینے کی بجائے اس نے صحافی بننے کا اعلان کیا اور اس نے کہا کہ میں صحافی بنوں گا۔ اس وقت یقینی طور پہ کانگریس میں اور کانگریس کا ایک بہت بڑا نام تصور کیا جاتا تھا موتی لال نہرو کا، یعنی کہ جسے ہم نہرو کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے فرزند یعنی کہ ان کے بیٹے جواہر لال نہرو کا۔ موتی لال نہرو نے اس نوجوان میں اٹریکشن دیکھی اور ان کے اپنے عالی شان گھر کے اندر یعنی کہ الہ آباد کے اندر ایک بہت ہی ان کا مشہور گھر آنند بھون کے نام سے مشہور تھا، وہاں پر ایک اخبار کا دفتر کھولا گیا اور اس اخبار کے دفتر کے اندر اس شخص کو یعنی کہ جس کا ابھی میں آپ کو پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا، اسے وہاں پر ملازمت دی جاتی ہے اور اس وقت کے 1500 روپے میں اسے تنخواہ دی جاتی ہے، اور 1500 روپے اس وقت کے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی کے قریباً کوئی 20-25 لاکھ روپے ہوں گے، تو اتنا مہنگے اسے نوجوان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ جلدی ان کے آرٹیکلز، ان کے کالمز اتنے مشہور ہوتے ہیں کہ اس وقت نہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح، اندرا گاندھی، خود موتی لال نہرو اور بلکہ ایک کلاس جو پولیٹیکل کلاس تھی وہ ان کے آرٹیکلز کو بڑے غور سے پڑھتی تھی، اور اسی لیے ان کی شہرت دن بدن بڑھتی گئی، ان کی ترقی ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک اخبار انڈیپینڈنٹ کے نام کا اسے جوائن کرتے ہیں اور اس کے ایڈیٹر بن جاتے ہیں۔ جب یہ الہ آباد میں آتے ہیں تو ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی اور موتی لال نہرو سے ان کے بے حد اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تو اسی تعلقات کی بنیاد پر وہ ان کے گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ اس کے اخبار کے ایڈیٹر نہیں بلکہ اب وہ انڈیپینڈنٹ کے ایڈیٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے گھر میں جب رہنا شروع کرتے ہیں تو گھر کے دیگر لوگوں سے ان
उनके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू होते हैं। आपके लिए तजस्सुस होगा और मैं एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए देना चाहता हूं, और उसी खबर के तसलसल के लिए ये ज़रूरी है कि इस पूरी सूरत हाल को आप समझिए। इस नौजवान का नाम था सैयद हुसैन। एक मुसलमान नौजवान इस वक्त मोतीलाल नेहरू के घर में रहता था। वही मोतीलाल नेहरू के जो उस वक्त महात्मा गांधी के बड़े करीबी तस्वुर किए जाते थे, और इस वक्त ये तस्वुर किया जाता था कि ये अपने आप को इस तरह से जाहिर करते थे कि जैसे मुसलमान और हिंदुओं से इनको कोई तकलीफ़ नहीं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, ये एक आज़ाद ख्याल लोग हैं। और इसीलिए कांग्रेस हमेशा नारा लगाती रही कि वो सेकुलर है, और इसी को जाहिर करने के लिए उन्होंने सैयद हुसैन को भी अपने घर में जगह दे दी थी। अब सैयद हुसैन उनके ज़ाहिर बड़े अहम औहदेदार, बड़े अहम शख्स थे जो उनके घर में रहा करते थे। अब यहाँ से कहानी का नया रुख शुरू होता है। दूसरी तरफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी ज़ाहिर बैरिस्टर की डिग्री लेकर आ चुके थे, अपनी शोहरत रखते थे, पाकिस्तान के बाद में वो बानी हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की उम्र उस वक्त ज़ाहिर अगर आप 78 से अंदाज़ा लगाइए तो उस वक्त करीबन कोई उनकी उम्र 36-37 साल के करीब थी। उस वक्त कायद आज़म का भी एक शोहरत थी, और उस वक्त उनकी एक शादी होती है। उनकी शादी होती है रत्ती बाई से। रत्ती बाई की उम्र उस वक्त 18 साल होती है जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से उनकी शादी होती है। और कहा जाता है कि उनके कायद आज़म के और रत्ती बाई के उम्र के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क मौजूद था, लेकिन लोगों के लिए दो अलग अलग कम्युनिटी की शादियां बहुत अहमियत रखती थी। उस वक्त हिंदुस्तान जहां पर कांग्रेस मौजूद थी, और जहां ये कहा जाता था कि दो मुख्तलिफ ग्रोह, दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान शादियां इतनी आसान नहीं थी, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शादी पारसी और एक ज़ाहिर मुसलमान घर के दरमियान एक बड़ा मामला था। अब यहीं से कहानी का तीसरा रुख शुरू होता है। मोतीलाल नेहरू की बेटियां थी। मोतीलाल नेहरू की जो सबसे खूबसूरत बेटी थी उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी उस वक्त कोई 18-19 साल की थी कि जिस वक्त सैयद हुसैन ने नेहरू के घर में रिहाइश रखना शुरू की। उनके घर वालों से ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हुए, और क्योंकि सैयद हुसैन एक वजी नौजवान थे, बहुत खूबसूरत थे, लंबा कद था, इसलिए, और अंग्रेज़ी ज़ाहिर एक बहुत बड़ा मामला था। और इलाहाबाद जैसे माहौल के अंदर के जहाँ पर एक शख्स बाहर से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आया हो, एक अखबार का एडिटर हो और एक खाते पीते घराने का हो, वो हमेशा से नायाब ही तस्वुर किया जाता था। इसलिए लक्ष्मी की अट्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता सैयद हुसैन में होना शुरू हुई, और सैयद हुसैन और लक्ष्मी के दरमियान ताल्लुक आगे बढ़ना शुरू हो गया। खतरे की घंटियां बजती गईं, और नेहरू को ये बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसके घर में ही मोहब्बत परवान चढ़ रही है। नेहरू को ये कहा जाता था कि बड़े ही बोल्ड माइंडेड है, वो हिंदू और मुसलमानों की शादियों के मुखालिफ नहीं है, लेकिन जब अपने ही घर पर बात आना शुरू हुई तो उन्होंने आसमान, कहा जाता है कि जब उन्हें इस बात का मालूम हुआ तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा और गौर से देखते रहे, घूरते रहे, और गुस्से की हालत में उन्होंने ये कहा कि ये सब क्या मेरे घर में होता था, ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। मुख्तलिफ किताबों का अगर आप देखें तो उन किताबों में वाज़े तौर पर इस गुस्से का इजहार नज़र आता है। लक्ष्मी की खुद अपनी लिखी हुई किताब को अगर आप देखें तो उस किताब में भी वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि कैसे उसे सैयद हुसैन से मोहब्बत हुई। उनकी किताब स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अगर आप देखें, जो लक्ष्मी पंडित की अपनी किताब है, उसे आप देखिए, और उसके बाद फिर उनकी बहन की किताब वी नेहरूज़ को अगर आप पढ़ें तो उसमें वाज़े तौर पर इसका इजहार है कि किस तरीके से मोतीलाल नेहरू ने अपने गुस्से का इजहार किया। मगर मोहब्बत ज़ाहिर अंधी होती है, और कहा जाता है कि उस वक्त जगह जगह मोहम्मद अली जिन्ना की, यानी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शादी की मिसाल दी जाती थी कि ऐसा मुमकिन है। और नेहरू तो अपने आप को उनसे ज़्यादा लिबरल और सेकुलर तस्वुर किया थे। तो लक्ष्मी पंडित का, यानी कि जो नेहरू की बेटी थी, उनका ख्याल था कि उनके घर से रेजिस्टेंस नहीं होगा। नेहरू ये बात परेशान होकर ये बात महात्मा गांधी को बताते हैं, और महात्मा गांधी के मशवरे के बाद लक्ष्मी पंडित को महात्मा के आश्रम में भेज दिया जाता है।
लेकिन मोहब्बत ज़ाहिर अंधी होती है और अंधा ही ये मामलात होता है। लक्ष्मी वहाँ से निकल कर सैयद हुसैन के घर पर आ जाती है। जब सैयद हुसैन के घर पर मौजूद होते हैं और कोई हल नज़र नहीं आता है तो उस वक्त सैयद हुसैन मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाते हैं और ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा मुसलमानों के उस वक्त एक आलिम दीन यानी कि मौलाना रशीद फ़िक्री साहब से दरख्वास्त की जाती है कि वो निकाह पढ़वाएं। मौलाना रशीद फ़िक्री साहब ये निकाह पढ़वाते हैं और फिर ये निकाह होता है। उस वक्त तहलका मच जाता है जब ये अखबारात में ख़बर छपना शुरू होती है और इसकी धूम यहाँ तक नहीं बल्कि इंग्लैंड तक महसूस की जाती है। और इंग्लैंड की जो उस वक्त की असेंबली होती है उसमें कहा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर नेहरू को अंग्रेज़ बड़ा ही अहम मानते थे, कहा जाता है कि उस शख्स के बारे में क्या राय है कि जिसने नेहरू की बेटी को अगवा कर लिया है। सैयद हुसैन को जब ये बात मालूम होती है तो सैयद हुसैन उसके ख़िलाफ़ बाकायदा ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि आपने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो ठीक नहीं है, आपको इस ज़बान के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगी। खैर ज़ाहिर सी बात है कि ये मोहब्बत बड़ी ही ख़ानदान को कबूल नहीं की जाती। वो इंडिया के जिसके मुतालिक आज ये कहा जाता है कि वहाँ पर लव जहाद होता है, इंतहा पसंदी उरूज पर कही जाती है, उसी इंडिया के अंदर उस वक्त के नेहरू को इस बात में शदीद इख्तलाफ होता है और इसकी शिद्दत और इसकी हरारत हम कहानी के अगले हिस्से में आपको बताते जाएंगे। अब होता क्या है, ये शादी तो हो जाती है, ये निकाह भी हो जाता है और बाकायदा पूरी दुनिया को मालूम भी हो जाता है। उस वक्त कई किरदार सामने आते हैं और उसकी काउंसलिंग भी करते हैं और उस काउंसलिंग में बड़े अहम नामों का भी जिक्र होना शुरू होता है, मगर दबाव बढ़ता जाता है। खुद उसके बाद दबाव इस हद तक बढ़ता है कि बहुत सारे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं और बहुत सारी किताबों से बात अक्स की जाती है कि नेहरू के दबाव की वजह से सैयद हुसैन को इंडिपेंडेंट अखबार छोड़ना पड़ जाता है और वो उससे इस्तीफ़ा दे देते हैं। जहाँ वो अपने इस्तीफ़ा देते हैं वहीं पर बहरहाल उन पर यह दबाव भी आता है कि वो हर सूरत में लक्ष्मी पंडित को छोड़ दें। लक्ष्मी पंडित की वालदा और लक्ष्मी पंडित के वालिद इस हवाले से काउंसलिंग फिर शुरू करते हैं, लेकिन मामला हल नहीं हो पाता और दबाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उनकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया जाता है। इस मुश्किल हल में एक बार फिर महात्मा गांधी से रब्ता किया जाता है और उस वक्त खिलाफत कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली होती है। सैयद हुसैन खिलाफत कॉन्फ्रेंस के लिए निकलते हैं और जब वो खिलाफत कॉन्फ्रेंस के लिए निकलते हैं तो वो इस हवाले से लक्ष्मी पंडित को ये बात कहते हुए निकलते हैं, अपनी बीवी को ये बात कहते हुए निकलते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए महात्मा गांधी के आश्रम चली जाओ। ख़ुद इनकी किताब स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के अंदर जिस तरीके के माहौल वहाँ पर आश्रम में था उसकी पूरी तफसीलात ख़ुद लक्ष्मी पंडित ने अपनी किताब के अंदर लिखी हुई है। अगर आप स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कहानी में आगे क्या होता है। इस दबाव को आगे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और फिर जब दबाव बेहद बढ़ जाता है तो लक्ष्मी और सैयद हुसैन आपस में मिलकर ये फैसला करते हैं कि किसी तौर पर भी हमें लगता है कि हिंदुस्तान में हमें रहने नहीं दिया जाएगा। तो दोनों की बाहमी रजामंदी के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। खबर अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी में अभी बहुत सारे टर्न्स हैं और बहुत सारे सिलसिले हैं। और जब ये दोनों अलहदा हो जाते हैं तो लक्ष्मी पंडित की मर्ज़ी के बग़ैर वही मोतीलाल नेहरू जो अपने आप को सेकुलर इंसानी हुकूक का अलमबरदार करार दे रहे होते हैं, वही मोतीलाल नेहरू लक्ष्मी पंडित की मर्ज़ी के बग़ैर फ़ौरन ही उनकी शादी करवा देते हैं। जब ये शादी हो जाती है तो उसके बाद सैयद हुसैन को मालूम होता है और उसके बाद सैयद हुसैन ने कभी भी शादी नहीं की। आप समझ रहे होंगे कि कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई और 1921 के अंदर यानी 1921 के अंदर सिर्फ 3 साल के बाद ये तलाक हो जाती है और लक्ष्मी पंडित की शादी भी हो जाती है। कहानी में अभी बहुत सारे मोड़ हैं, अभी लियाकत अली ख़ान को भी आना है, अभी बहुत सारे और लोगों को भी आना है। तो आप कहानी सुनते जाइए और फिर आगे देखिए होता क्या है। कहा यह जाता है कि जब 1900 उसके बाद बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं सैयद हुसैन और सैयद हुसैन मायूस होने के बाद बरतानिया चले जाते हैं। जब वो बरतानिया चले जाते हैं, ताज बरतानिया में होते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है नेहरू के असर रसूख उस वक्त अंग्रेज़ सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं।
सैयद हुसैन वहाँ से मायूस होकर अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका में वो रहते हैं। वो कई बार अमेरिका से आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता। उसके बाद ये कहानी चलते 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 यानी कि 1921 के बाद करीबन कोई 24 साल का वक्त गुजर जाता है और उसके बाद लक्ष्मी पंडित के जो शौहर हैं उनका इंतकाल हो जाता है। जब लक्ष्मी पंडित के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उस वक्त सैयद हुसैन की उम्र कोई 58 साल के करीब होती है, यानी 58 ईयर के करीब होती है। और 58 साल ज़ाहिर एक बड़ा वक्त, 30 साल उनकी लक्ष्मी से अलहदगी होती है, मगर कहा ही जाता है कि दोनों के दरमियान ख़त व किताबत का सिलसिला जारी रहता है। फिर होता यह है कि कुछ ज़राए ये भी इतला देते हैं कि किसी बहाने से लक्ष्मी पंडित अमेरिका जाती है और वहाँ पर उनकी सैयद हुसैन से फिर मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है। मैं कहानी के टर्न्स आपको बता रहा हूँ। अब इस मसरूफियात को रखने के लिए जब वो वहाँ जाते हैं तो नेहरू को एक ख़त लिखते हैं सैयद हुसैन कि मैं इंडिया आना चाहता हूँ, तो उन्हें मना कर दिया जाता है कि नहीं, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। मगर उससे कुछ ही दिनों के बाद होता यह है कि नेहरू नहीं चाहते कि इस उम्र में भी, कि जब ज़ाहिर 58 साल के सैयद हुसैन हो चुके हैं और कोई 45 के ऊपर जो है वो इस वक्त लक्ष्मी पंडित हो चुकी है, लेकिन नेहरू उस वक्त भी उनके दरमियान रुकावट बनकर ज़ाहिर होते हैं और कहते हैं नहीं। उत्तर प्रदेश में 1945-46 के इलेक्शन होते हैं, 1945 के पूरे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर उस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर वज़ीर बना दिया जाता है लक्ष्मी पंडित को। अब ज़ाहिर है उस वक्त वज़ीर जो है एक सीनियर वज़ीर लियाकत अली ख़ान भी होते हैं, लियाकत अली ख़ान भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो वज़ीर होते हैं जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। सिर्फ 2 साल के वक्फे के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। ये कहानी आगे सुनाता हूँ, होता क्या ज़रा देखिए। अब जब ये मामला चल रहा होता है तो बड़ी अहम बात है कि सैयद हुसैन इंडिया आ जाते हैं। जब वो सैयद हुसैन इंडिया जाते हैं और वो नेहरू के घर पर जाते हैं तो उनका वार्म वेलकम नहीं होता, लेकिन वो फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश जाते हैं और उस वक्त उनकी मुलाकात एक बार फिर से लक्ष्मी पंडित के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। नेहरू इस हद तक खाइफ होते हैं और इस हद तक डरे हुए होते हैं कि कहीं इस 58 साल यानी 30 साल 35 साल के बाद फिर ये मोहब्बतें जो जाग गई हैं कहीं कोई और नया रुख अख्तियार ना कर ले। तो इसके लिए उस वक्त बड़ा ही अजीब व गरीब फैसला किया जाता है कि लक्ष्मी पंडित को उस वक्त अमेरिका का सफ़ीर बनाने का फ़ैसला कर लिया जाता है। उस वक्त लियाकत अली ख़ान इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। अगर आप अखबारात को देखें, आप दीगर ज़रायों को देखें तो उसमें उसकी शदीद मुखालफत होती है कि किस तरीके से लक्ष्मी पंडित को अमेरिका भेजा जा रहा है और नेहरू क्यों भेज रहे हैं। सबको मालूम होता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह सैयद हुसैन है। कहानी का रुख आगे बढ़ता है। सैयद हुसैन इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम का मसला होता है और सैयद हुसैन कहीं दोबारा से अमेरिका न चले जाएं, और ज़ाहिर अमेरिका में उनके बड़े मजबूत रूट्स होते हैं। उन्होंने 25 साल अपनी ज़िंदगी के अमेरिका के अंदर 20 साल से ज़्यादा का वक्त अमेरिका के अंदर गुजारा हुआ होता है, तो वो समझते हैं कि वो दोबारा से कहीं अमेरिका ना चले जाएँ जहाँ पर लक्ष्मी पंडित इस वक्त सफ़ीर है। एक फिर नया खेल शुरू होता है और उस खेल के तहत जानबूझकर सैयद हुसैन को भेज दिया जाता है मिस्र। मगर क्या किया जाए, और उसी दौरान जब उन्हें मिस्र भेजा जाता है तो उससे कुछ दिन पहले का एक बड़ा वाक़या रोनुमा होता है और महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया जाता है। जब महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया जाता है तो यहाँ पर कहानी एक और रुख इख्तियार करती है और महात्मा गांधी का जो कत्ल होता है उस कत्ल के बाद उनके एक ज़ाहिर घर में मुख्तलिफ सफाई होती है, मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, तो एक बंद फ़ाइल मिलती है, एक बहुत बड़ी एक फ़ाइल मिलती है। वो फ़ाइल लाकर गांधी जो राजकुमारी मेरे ख्याल से राजकारी नाम था उनको, जो बाद में हेल्थ मिनिस्टर भी बनी, वो लाकर नेहरू को देती है वो फ़ाइल। तो जब वो नेहरू को फ़ाइल देती है तो उस फ़ाइल में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, मुख्तलिफ कागजात पड़े होते हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। तो उस फ़ाइल के अंदर आपको हैरत होगी कि उसमें जो लक्ष्मी पंडित है उसके और सैयद हुसैन के दरमियान जो रवाबित थे और जो दोनों के मामलात थे, जो दोनों के ताल्लुकात थे, जो दोनों की चीज़ें मौजूद थी, वो भी उसका हिस्सा थी। तो नेहरू गुस्से में उसे देखते हैं और कहते हैं इसे जला दो, और बकौल राजकारी के कि जब तक वो राजकारी मेरा ख्याल से नाम था, जब तक वो पूरी जल नहीं गई
तब तक नेहरू वहाँ से हटे नहीं कि उसका एक भी हिस्सा मौजूद नहीं होना चाहिए कि इनके दरमियान कोई ताल्लुकात थे। खैर, अब इसका हल क्या ढूंढा जाए, इसके लिए उसे एक सज़ा दी जाती है और सैयद हुसैन को उस वक्त मिस्र भेज दिया जाता है, यानी कि मिस्र में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया जाता है। मिस्र में बड़ा शानदार इस्तकबाल होता है इनका, और इतलात ये आती है कि अमेरिका में जो इंडिया की सफ़ीर हैं, यानी कि जो लक्ष्मी पंडित है, वो मिलने के लिए एक बार फिर मिस्र का रुख करती है। ज़ाहिर है ये ख़बर एक बार फिर तहलका अंगेज़ ख़बर होती है और नेहरू ख़ानदान ख़ुद इसके लिए पसंद नहीं करता। अच्छा, इस बारे में ये बात सिर्फ नहीं है कि जो लोग भी उस वक्त कांग्रेस का हिस्सा थे, या जो ये कहा जाता था कि जनाब वो बड़े मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान सेकुलरिज्म की बात करते थे, ख़ुद आपके इल्म में होगा कि ख़ुद महात्मा गांधी का जो बेटा 1926 के अंदर उससे एक फातिमा नाम की लड़की से मोहब्बत हो गई थी, और उस शादी की शदीद मुखालफत महात्मा गांधी ने की थी, और वो फिर बाद में शादी नहीं हो चुकी थी। ये सब अपने आप को लिबरल और सेकुलर बड़े ज़ाहिर करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा इस तरह की शादियों की या इनकी मुखालफत की। अब वो होता क्या है, कहानी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मेरे चाहने वालों, अभी कहानी बहुत बाकी है, और मैं आपको जो कहानी तारीख़ के हवालों से बता रहा हूँ वो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब कहानी का रुख होता है अगला, और अगला जब रुख होता है उस रुख में होता ये कि ये बात सिलसिला चलता रहता है। एक दिन अचानक एक ख़बर आती है, और वो ख़बर सबके लिए तहलका अंगेज़ होती है। अच्छा, इस बारे में आपको ये भी बता दूं कि सैयद हुसैन के ख़ुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत गहरे मरासिम थे, और उनके तमाम उस वक्त की जो टॉप लीडरशिप थी उनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे। ख़ुद लियाकत अली ख़ान के साथ हो, या फिर इंडिया के अंदर जितनी टॉप लीडरशिप थी उनके साथ उनकी ख़त व किताबत का सिलसिला जारी रहता था। अब जब वो उन्हें मिस्र का सफ़ीर मुकर्रर किया जाता है, तो फिर ये इत्तला आती है कि फिर लक्ष्मी वहाँ पर मुलाकात के लिए आई है, फिर इसे कबूल नहीं किया जाता। मगर एक दिन यकायक ख़बर आती है कि सैयद हुसैन का हार्ट अटैक हो गया। सैयद हुसैन को वक्त नहीं मिलता ज़िंदगी में मज़ीद आगे, और फिर सैयद हुसैन की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें मिस्र के अंदर ही तदफीन कर दी जाती है। आपको बड़ी हैरत अंगेज़ ख़बर और बड़ी हैरत अंगेज़ बात यहाँ पर मैं बताता हूँ कि मिस्र के अंदर एक कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान का नाम जो है कहा जाता है अल अरफा, अरफा बल्कि कहा जाता है। अरफा का मतलब होता है मुर्दों का शहर, द सिटी ऑफ डेड कहा जाता है, मुर्दों का शहर कहा जाता है। उसमें अगर किसी बर्रसगीर के शख्स की अगर कब्र मौजूद है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सैयद हुसैन है कि जिनकी कब्र वहाँ पर मौजूद है। साहिल लुधियानवी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि मैं तसव्वुफ़ को समझता हूँ तमद्दुन का फ़रेब, तुम मेरी तस्वीर पे फूल चढ़ाती क्यों हो। अगर तुम्हें मुझसे ज़्यादा है ज़माने का ख्याल, तो जहाँ माँ बाप कहते हैं वहाँ शादी कर लो। तो जो इसका वो वाला मिसरा है कि तुम मेरी तस्वीर पे फूल चढ़ाती क्यों हो, आपको हैरत होगी कि इस इंतकाल के बाद लक्ष्मी पंडित फ़ौरन जाती है मिस्र, और उसके बाद वो कई बार जानबूझकर मिस्र गई, और हर साल वो मिस्र जाती थी, और कहा जाता है कि वो उनकी कब्र पर फूल ज़रूर चढ़ाती थी। ये कहानी आपको ये बताती है कि जो माशरा है उसमें कई लोग अपने आप को चाहे सेकुलर कहते रहे, चाहे वो अपने आप को किसी भी नाम से करते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी ये कबूल नहीं था कि उनके घर में किसी भी और मज़हब के लोगों की शादी हो। ये वजह थी कि आज हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी अपने उरूज पर पहुँच चुकी है। इसके बनिस्बत हमेशा कायद आज़म की मिसालें दी जाती रही, मगर एक और नुक्ता भी, अगर आप इस पूरी कहानी को देखिए कि हर मुमकिन कोशिश की गई, उनके दरमियान डाइवोर्स भी हो गया, करवा दी गई, ज़बरदस्ती तलाक भी करवाई गई, लेकिन उन सब के बावजूद भी सैयद हुसैन और लक्ष्मी पंडित का नाम आज भी कहीं ना कहीं साथ ही लिया जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।